جہاں تک ایڈاک کی بنیاد پر تعیناتیوں کی تقرریوں کا تعلق ہے تو اس کی متعلق اپنے ماضی کے چند تجربات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ موجودہ حکومت محکمہ حیثیت کو کس انداز میں چلانا چاہتی ہے۔ 21 دسمبر 2023 کو 150 ڈاکٹروں کے قریب ایڈاک کی ایکسٹینشن کی اپروول وزیر اعلیٰ بلوچستان سے لیا گیا، جس کا نوٹیفیکیشن جنوری کے آخر میں ایشو کیا گیا۔ اسی طرح 29 فروری کو 2024 کو اور 12 مارچ 2024 کو ایڈاک کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن ہوا، جس کے بعد ڈاکٹرز اپنے اسپتالوں میں خدمات سر انجام دینے لگے اور وہاں پہنچ گئے اور اپنے خدمات سر انجام دینے لگے، لیکن ان کی تنخواہیں مئی 2024 تک شروع نہیں ہو پائی، یعنی 4 مہینے گزر جانے کے بعد بھی ان کی تنخواہیں شروع نہ ہوئی، اور مئی کے آخر میں محکمہ حیثیت میں ہونے والی انتظامی تقرری اور تبادلوں کی وجہ سے تنخواہوں کی اجرا کا سلسلہ تعطل کا شکار ہوا، جس کے بعد پتہ چلا کہ محکمہ حیثیت سے ریکارڈ غائب ہے، جس کی بدولت ڈاکٹرز پچھلے 8 مہینوں سے سرکاری دفاتروں کے چکر لگانے پر مجبور ہیں، لیکن تاحال کوئی سنوائی نہ ہو سکی۔ اب ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 6 مئی 2024 کو تقریباً 150 کے قریب ڈاکٹروں کی ایڈاک پر تعیناتی کی گئی، لیکن جب اے جی آفس ڈاکٹر گرین سلپ بنانے کے لیے پہنچے تو اے جی آفس نے محکمہ حیثیت سے اپروول کی سمری مانگی۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کی کوئی دفتری کارروائی موجود ہی نہیں ہے، کوئی ایکسٹینشن سمری وزیر اعلیٰ یا سی ایس یا کسی بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی سے اس کی اپروول موجود ہی نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر پچھلے 5 مہینوں سے بغیر کسی تنخواہوں کے کام کرنے پر مجبور ہیں، جو کہ سراسر ان عہدیداروں کی نالائکی کی وجہ سے ہے۔ اب حکومت وقت اور تمام عہدیداران کان کھول کر سن لیں کہ ہم ڈاکٹر محکمہ حیثیت کے ملازمین کو اس طرح ذلیل ہونے نہیں دیں گے اور نہ ہی ان کا استحصال ہونے دیں گے۔ آپ اپنی نالائکی کا بوجھ ڈاکٹروں پر اور دیگر ہیلتھ سٹاف پر نہ ڈالیں۔ پرماننٹ ملازمتیں ہمارا بنیادی حق ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح لیا جاتا ہے یا کس طرح چھینا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ کسی کاغذ کے بل بوتے یا کسی کاغذ کے ایک ٹکڑے کے بل بوتے وہ ہمیں ہمارا اپنا حق لینے سے روک سکیں گے تو وہ خام خیالی کا شکار ہے۔ ہم سکلڈ اور کوالیفائڈ لوگ ہیں، آپ کی ان باتوں سے ہمیں نہ تو آپ مطمئن کر سکتے ہیں اور نہ ہی احتجاج کا راستہ روک سکتے ہیں۔ آپ کی غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے بلوچستان کے 3 نئے کالجز ڈی ریکگنیشن کے دہانے پر کڑے ہیں، جہاں آپ روز تنخواہیں بند کرنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہوں۔ یہ 2020 یہ جو 3 میڈیکل کالجز بلوچستان میں بنے ہیں، یہ تقریباً پچھلے 10-15 سال کا پروجیکٹ ہے۔ کیسے تیسے کر کے ان کی تعمیر تو ایک میڈیکل کالج کی تعمیر مکمل ہو سکی، مکران میڈیکل کالج کی، باقی جو 2 ہمارے میڈیکل کالجز ہیں، چاہے جلوان کا میڈیکل کالج ہے چاہے لورلائی کا، وہ آج دن تک وہ ان کے اپنے بلڈنگز موجود نہیں ہیں۔ وہ کسی ٹیکنیکل کالج کے بلڈنگ میں جو ہے وہ میڈیکل کالج بن گئے اور کوئی دوسری سرکاری عمارت میں جو ہے اس کو میڈیکل کالج بنا دیا گیا۔ اب وہاں پر کیا ہوا، 2020 میں جب ان میڈیکل کالجز کو سٹارٹ کیا جا رہا تھا تو ڈاکٹروں کو بلایا گیا اور ان کو کہا کہ ہم یہاں پر ایڈاک کی بنیاد پر آپ کی تعیناتی کریں گے، لیکن مین وائل یہ جو پوسٹ جس کے اگینسٹ ہم آپ کو ایڈاک اپوائنٹمنٹ دے رہے ہیں، 6 مہینوں کے اندر ان پوسٹوں پر جو ہے ہم پرماننٹ اپوائنٹمنٹ کریں گے۔ اب وہ 2020 کے بعد آج 2024 تقریباً 4 سے 5 سال گزر گئے، یہ 6 مہینوں کی ایکسٹینشن دیتے رہے ڈاکٹروں کو، لیکن آج تک انہوں نے جو ہے ان کالجز میں پرماننٹ اپوائنٹمنٹس نہیں کی۔ اب ہوا کیا کہ جو 2020 میں انہوں نے ایڈاک اپوائنٹمنٹ شروع کی، اگر یہ ڈاکٹر ادھر نہ جاتے اور وہ ادھر کام نہ کرتے تو یہ میڈیکل کالجز صرف کاغذ تک ہی محدود رہتے یا ان کا بجٹ جو ہے وہ حکمرانوں کے جیب میں چلا جاتا، یہ کبھی بھی جو ہے فنکشنل نہ ہوتے۔ یہ ڈاکٹروں کی قربانی تھی کہ انہوں نے اپنا کیریئر کی قربانی دی، وہاں پر گئے۔ 2020 کی جو یہ فیصلہ ہوا ہے وہ اس ٹائم کی کابینہ نے کیا ہے۔ جب آپ کے فیسلٹیز کا یہ لیول ہے، پھر آپ کیسے جو ہے وہ اپنے اسکلفل لوگوں کو کنٹریکٹ پر رکھنا چاہتے ہیں؟ اور اتنے بائسڈ معاشرے میں جہاں پر اٹھ کے یہ نوٹیفیکیشن تو کیا جاتا ہے کہ اسینشل سروسز ہے، اس میں آپ سٹرائک نہیں کر سکتے ہو، پھر پرکس پریویلیجز بھی اسینشل سروسز والے دو، جس طرح باقی اداروں کو دے رہے ہو، وہ ان کی ترقی، ان کا تنخواہ 100% بڑھ جاتا ہے، 120% بڑھ جاتا ہے۔
हर साल के स्टार्ट में जब एंट्रीज फारिग होती है आते हैं यहाँ पर, आपको पता है जो बाकी इदारे हैं जो इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं उनका एक तरीक़ाकार थे, उसके तहत उनकी अपॉइंटमेंट्स होती है, तनख्वाहों में इजाफा होता है, उनको उसी तरह से अलाउंसेस मिलते हैं, आप फिर वो भी उसी तरह के दे, मराद भी उसी तरह के दे। मराद आप छीन रहे हैं, सहूलियात आप दे नहीं रहे हैं, लेकिन आप डॉक्टरों को आए रोज़ तजलील उनकी तौहीन करने के लिए इस तरह के नोटिफिकेशन करते जा रहे हैं। जो डॉक्टर इस वक्त एडॉक पर काम कर रहे हैं, 6-6 महीने गुजर गए, 8-8 महीने गुजर गए, डॉक्टरों को उनकी तनख्वाहें नहीं मिली है। ये लोग उधर काम करते हैं एक मजबूरी के तहत, क्योंकि इन्होंने अपना घर चलाना होता है, इन्होंने अपने घर से जो है अपना खर्चा पानी बंद करना होता है कि माँ बाप यही कहते हैं कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बन गया, मेरी बेटी तो डॉक्टर बन गई है, लेकिन वो जब हेल्थ डिपार्टमेंट आते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास अगर उनको स्टाइपेंड मिलना है वो 6 महीने 8 महीने के बाद मिलता है, अगर उनको एडॉक की तनख्वाह मिलनी होती है वो 6 महीने के बाद मिलती है, एडॉक एक्सपायर हो जाता है। ऐसे केसेस पड़े हैं कि एडॉक एक्सपायर है और लोगों की तनख्वाह ही नहीं मिली है। अब वापस से ऑर्डर्स हो रहे हैं कि भाई इसको तनख्वाह दो, इसको हमने अपॉइंट किया था, 6 महीने इसने पूरे कर लिए, इसको इसकी लमसम तनख्वाह दे। अब जब तनख्वाह उधर से निकालने के लिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, कोई 2 लाख मांग रहा है, कोई 5 लाख मांग रहा है, एजी ऑफिस आते हैं वही यही सिलसिला है, कोई 50% मांग रहा है, कोई 30% मांग रहा है, मतलब अपने हलाल कमाई पर वो लोग उनसे परसेंटेजेस मांग रहे हैं। तो आप करप्शन का एक नया रास्ता जो है सबके लिए ओपन कर रहे हैं। आप एजी ऑफिस का जो है वो जो उन्होंने मार्केट, उन्होंने बाजार अपना लगाया हुआ है, आप उसको गर्म करना चाहते हैं। आप पेरिफेरी में जो करप्शन चल रही है, आप उनको जो है उनसे पैसा लूट के डॉक्टरों से अपनी जेबों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम किसी सूरत होने नहीं देंगे। ना ये कंट्रैक्ट एडॉक अपॉइंटमेंट, ये यंग डॉक्टर एसोसिएशन इनसे बाइकआउट करती है। अगर आपने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, एक कॉल पर पूरे बलूचिस्तान के डॉक्टर्स को यहाँ कोयटा बुला लिया जाएगा, फिर आप चलाएं। अगर आपको लगता है कि यार ये काम नहीं कर रहे थे तो अच्छा है, आपकी तनख्वाहें बच जाएंगी, लेकिन अगर वो काम कर रहे थे आपका सिस्टम रुक जाएगा। फिर आप संजीदगी का मुजाहरा करें और इन डॉक्टरों को परमानेंट अपॉइंटमेंट जो है वो इनको दे, जो इनका हक बनता है। किसी से कोई खैरात नहीं मांग रहे। इसके साथ अस्पतालों में सहूलियात का फकदान है, सबके सामने ये बात वाज़ेह है। जहाँ गरीब अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, जिनके इलाज के लिए ना कोई सिरिंज मौजूद होती है, ना कोई दवाई मैसर है, लेकिन इन महलात में रहने वाले लोग गरीब लोगों के मसाइल का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि अपने सर दर्द का इलाज भी बाहर मुल्क से कराते हैं। अगर हुकूमत के वक्त ने अपना रवैया और पॉलिसी दुरुस्त ना की तो डॉक्टर की तरफ से रद्द-ए-अमल की सूरत में होने वाली तमाम इक़दाम की ज़िम्मेदारी ये मौजूदा हुकूमत पर होगी, ये मौजूदा 20 लोग 30 लोगों की काबीना पर होगी, ये गैर संजीदा वज़ीर आला पर होगी। तमाम मीडिया के तवस्सुत से अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि महकमा सेहत के मुलाजमीन को दीवार से लगाने की कोशिश दरअसल में प्राइवेटाइजेशन की तरफ से एक सोची समझी साजिश है। लिहाजा हम अवाम से अपील करते हैं कि इस दोगली पॉलिसी का शिकार ना हो और डॉक्टरों के साथ मिलकर अपने और डॉक्टरों के हुकूक की जंग लड़ें। इसके साथ मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँ कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं पीपीएचआई की शक्ल में, ये प्राइवेटाइजेशन पहली बार नहीं हो रहा। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट पहले से किया है। 2006 में पीपीएचआई के नाम से इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, एक कंपनी जो है स्टार्ट की। वो वहाँ पर तमाम अपॉइंटमेंट्स जो है वो एडॉक कॉन्ट्रैक्ट पर ही होती है। अब आप उस पीपीएचआई का पता नहीं कितने लोगों ने उसको कवर भी किया होगा या नहीं किया होगा, उनको पता भी है कि वो उसकी कोई कंट्रीब्यूशन है भी या नहीं, हालांकि सालाना वो अरबों रुपए का बजट लेकर जाते हैं। अब उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। बीएचयूज़ में आपके पास डॉक्टरों की वैकेंसीज अवेलेबल है, वो उन वैकेंसीज पर डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट नहीं करते। वहाँ पर जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ को रखा होता है, उस पैरामेडिकल स्टाफ से वो बीएचयू चला रहे होते हैं। जो डॉक्टरों की तनख्वाहें वो अपने लिए एक दूसरे मद में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो डीएसएम्स हैं, आपके हर अजला का एक डीएसएम हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट मैनेजर पीपीएचआई का हेड होता है। वो डीएसएम हम एक दिन इनके एक बरसर इक़्तिदार या इनके एक ज़िम्मेदार बंदे से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हम जब पहले डोमकी साहब होते थे वो फ़ोन करते थे कि मेरे इस फला बंदे को आप अपने साथ जो है वो डीएसएम रख लें। अब उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो टीचर था। अब यार एक टीचर माशरे का सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स होता है, लेकिन वो एक टेक्निकल चीज़ को कैसे समझेगा, कैसे उसको जो है वो लीड करेगा। फिर
हमारे दूसरे वज़ीर आला साहब आते हैं, वो फ़ोन करते हैं कि यार ये मेरा डेरा बुगटी का है, आप इसको जो है वो अपने पास DSM रख लें। उनको DSM रख लिया जाता है, उनकी क्वालिफ़िकेशन DVM की है। अब वो उन्होंने वेटरनरी मेडिसिन में काम किया है, लेकिन वो लीड कर रहे हैं या डील कर रहे हैं इंसानों के अदवायात को। मैं खुद PPHI में काम कर चुका हूँ। सिस्टम वहाँ पर इस तरह चलता है, फेक एंट्रीज़ होती रहती है, फेक एंट्रीज़ पर सारा सिस्टम चल रहा होता है, क्योंकि अगर जो टारगेट मेडिसिन है उन्होंने वो पूरा ना किया तो वो सेंटर बंद हो जाएगा। वो सेंटर बंद हुआ तो PPHI की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनेगा। इस तरह सिस्टम नहीं चलता है। अगर आप संजीदा है तो आपने अपने अवाम को, अपने मुलाजमीन को उनके हकूक देने हैं, और ये आप कोई किसी पर कोई वो नहीं कर रहे, एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा हक है। आप देंगे, हम आपका शुक्रिया अदा करके, आपको सलाम करके अपना हक ले लेंगे। अगर आप नहीं देंगे, वो छीनना में आता है, और ये किसी कागज़ मागज़ के बलबोते हम स्टॉप नहीं होंगे, ना इस तरह जो है हम लोग किसी कागज़ की वजह से बैकफुट पर जाएंगे। तो ये सारे मसाइल थे, और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से मैं हुकूमत को, महकमा सेहत को, सब पर ये वाज़े करना चाहता हूँ कि आज से 1 महीने पहले जो आपने मिनट्स हमारे साथ जो मीटिंग हुई थी 3 से 4 घंटे की, जिसके मिनट्स नोटिफाइड है, उस मिनट्स के रोशनी में जो मसाइल थे, जिनका सलूशन जिसका समरी के थ्रू होना है, जिन मसाइल का हल नोटिफिकेशन के थ्रू होना है, जिनका किसी और डिपार्टमेंट के थ्रू होना है, उन मसाइल पर संजीदा इक़दाम करें। वो जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुई है, उस एग्रीमेंट के तहत उन पर फ़ौरन इक़दाम शुरू किए जाए। अगर महकमा सेहत या हुकूमत बलूचिस्तान वो मिनट से जो है इनहराफ करती है, उससे पीछे हटती है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं अपने तमाम बलूचिस्तान में मौजूद हमारी ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़, चाहे पशीन, तुरबत, गवादर, हर जगह पर जो हमारे डॉक्टर्स इस वक्त हमारी काबीना मौजूद है, उन सबको मैं हिदायत देता हूँ कि आपने उठ के अपने तमाम डॉक्टर्स को एक पेज पर लेकर आना है। आज से, कल से आपने उठकर एक मोमेंटम स्टार्ट करना है। आपने लोगों, अपने डॉक्टरों को अपने मसाइल का बताना है, फिर उसके बाद उस इलाके की आवाम के साथ आपने मिलना है, उस इलाके के सियासी लोगों के साथ मिलना है, वहाँ के MPs के साथ मिलना है, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मिलना है, अपने मसाइल डिस्कस करने हैं। और नेक्स्ट कॉल जो आइंदा कुछ दिनों में हम अपनी नेक्स्ट कॉल देंगे, मंडे को हम हेल्थ डिपार्टमेंट विज़िट करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एक संजीदगी से मुज़ाकरात की कोशिश करेंगे। अगर हमारे मसाइल हुए तो गुड, उसके बाद मसाइल हल ना हुए तो आइंदा चंद दिनों में हम अपने आगे का लाएमल शेयर करेंगे, जिसमें फिर सड़कें भी होंगी, जिसमें फिर धरने भी दिए जाएंगे, जिसमें एहतजाजी कैंप भी लगेंगे। उसकी तमाम तर जिम्मेदारी, अगर थोड़ा सा भी जो है सर्विसेज में तातुल आता है, थोड़ा सा जो हमारी कोशिश होगी कि ज़रा सा भी जो है तातुल सर्विसेज में ना आए, अगर उसमें थोड़ा सा भी जो है वो तातुल आता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस मौजूदा कैबिनेट पर होगी, इस मौजूदा हुकूमत पर होगी।